रेड काइट ट्रैवल्स की शुरुआत बीजापुर से पुणे जाने के लिए है तैयार। रोज़ाना रात 10 बजे बीजापुर से पुणे रेड काइट लग्जरी बस सेवा होगी रवाना। अपना सफ़र आरामदायक बनाने के लिए रेड काइट से कीजिए सफ़र। आधुनिक टेक्निक के साथ बनाए गए स्लीपर कोच 2+1 से सफ़र का आनंद ले सकते हैं। यात्री अपने टिकट बुकिंग के लिए नीचे स्क्रीन पर दिए गए नंबरों पर संपर्क कर सकते हैं। यात्री ट्रैवल्स का पता सिटी सेंट्रल बस स्टैंड, गणेश ट्रैवल्स, सीएमसी कॉम्प्लेक्स, शॉप नंबर 7 नियर दातारी मस्जिद, बीजापुर। स्वागत है आपका बी न्यूज नेशन में। मैं हूं आबिद हुसैन शेख। पोशीदा उलूम व फ़नून इसमें छुपे हुए हैं। बिल्कुल मैं ये बात 100% आपकी सही कहूँगा। आपने जो मज़ामीन डॉक्टर साहब इमारत वाले साहब ने लिखी हैं वो काबिल तारीफ़ हैं। मुझे ये बात सुनने में आई कि डॉक्टर एम डी पाटिल साहब के पास जब इस रस्मी इजरा की दावत पहुँची तो उन्होंने कहा कि कौन सी किताब, तो किताब का जिक्र आया और साथ साथ टिकोटे का भी जिक्र आया। ದೊಡ್ಡ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಇವತ್ತು ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಇರಲಿಲ್ಲ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಏನೇ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೂಡ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಲಿಫ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ। ಆ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಆ ಕರೆಂಟ್ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಇರಲಾರ್ದಾಗ ಇವತ್ತು ಸಹ ವಾಟರ್ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಏನಿದಾವಲ್ಲ ಅವನ್ನ ಮ್ಯಾಚ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಸಹ ಜನರಿಗೆ ನೀರು ಕೊಡುವಂಥದ್ದು ಗಂಜುಗಳ ಮುಖಾಂತರ, ಬೇಗಂ ತಲಾಬ್ ಮೂಲಕ, ಎಲ್ಲ ಬಾವಿಗಳ ಮೂಲಕ ಇವತ್ತು ಸಹ 9 ಲಕ್ಷ ಜನಸಂಖ್ಯೆಗೆ ನೀರು ಕೊಡ್ತಿರುವಂಥದ್ದು ಭಾರಿ ಸಂಸತ್ತೊಂದು ಬುಕ್ ಸ್ಟಾಲ್ ಇದೆ। ನಾನು ಹೆಸರು ಹೋದಾಗ ಒಂದ್ಸಲ ಬುಕ್, ಅದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಗ್ಗೆ ಬುಕ್ಸು ಅದೆಲ್ಲ ತಗೋತಿರ್ತೇನೆ, ತಗೊಂಡೆ ಒಂದ್ಸಲ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಟನ್ ಮ್ಯೂಸಿಯಂ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅವ್ರದೊಂದು ಬುಕ್ ತಗೊಂಡೆ, ಅದನ್ನು ನೋಡ್ತೀನಿ ಅದು ವಿಷಯ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್, ಬಹುಶಃ ಅದ್ರಾಗ 75% ಪೇಂಟಿಂಗ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಆರ್ಕಿಯಾಲಜಿ ಅವ್ರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ನಮ್ಗೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಗೊತ್ತಿರಲಿಲ್ಲ। ಮತ್ತು ನಾನು ಅದನ್ನು ಇದು ಮಾಡಿಸಿ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ಇದನ್ನು ಮಾಡಿದೆ, ಒಂದು ಸಲ ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿಸಿದೆ, ಬುಕ್ ತುಳಸು ಕೂಡ ಭಾಳ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನೋಡಿದ್ದೀರಿ ಅದು ಅಂತ ಬಿಟ್ಟು ಎಲ್ಲ ಪೆಂಡಿಂಗ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಬಾರೆಂದಾಗದ, ಇಂಗ್ಲೆಂಡ್ನಾಗದವು, ಅಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕ ತುಳಸು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಅದಾವೆ, ಗೊತ್ತವಲ್ಲ, ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ತುಳಸವಲ್ಲ। ನಾನೇನೋ ಒಂದು ನೀರಾವರಿ ಮಂತ್ರಿ ಇದ್ದಾಗ ಖಾಸಗಿನೂ ಆಯಿತು, ನಮ್ಮ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಆಯಿತು, ಸುಮಾರು 12 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ಖರ್ಚು ಮಾಡಿ ತುಳಸೋದನ್ನ ಕೆಲವೊಂದು ಬೌಡಿಗಳನ್ನ ತುಳಸೋದು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ। ಬೇಗಂ ತಲಾಬ್ಗೆ ಮತ್ತೆ ಮರುಜೀವ ತಂದು ಕೊಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಿದ್ವಿ। ಕೃಷ್ಣಾ ನದಿ ನೀರು ತುಂಬಿ ಹೂಡೆತ್ತಿ ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಗಾರ್ಡನ್ ಮಾಡಿ ಅವತ್ತು ಸಹ ಬಿಜಾಪುರ ಜಿಲ್ಲೆ ನಗರದ ಜನ ಅವತ್ತು ಸಹ ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅವತ್ತು ಒಂದು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಅವತ್ತು ಸಹ ಆಗಿದೆ। ಸುಂದರವಾದಂಥ ಬೇಗಂ ತಲಾಬ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಇವತ್ತು ಸಹ ವಿಜಯಪುರ ನಗರಕ್ಕೆ ನೀರು ಕೊಡುವಂಥ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇವತ್ತು ಸಹ ಬೇಗಂ ತಲಾಬ್ ಸಹ
ಅದು ನಾವೇನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ ಇಲ್ಲಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಕೆಟ್ಟದಾದಂಥ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರ್ತದೆ ಸರ್. ಇದು ಒಂದೇ ಅಲ್ಲ, ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ನೋಡ್ತೀವಿ ಸರ್, ದೇಶದ ಎಲ್ಲ ಸ್ಮಾರಕಗಳು. ಯಾಕೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಹಂಗೆ ನೋಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಬರೀ ಟೂರಿಸಮ್ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಸಹ ನಮ್ಮ ಆರ್ಥಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಿಲ್ಲಬೇಕು ಅಂತವಾದ ಇವತ್ತೊಂದು ದಿವಸ ಇವತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಆದಿಲ್ ಶಾಹಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಹಂಪಿ ಇರ್ಬೋದು, ಅಲ್ಲಿ ಬದಾಮಿ ಐಹೊಳೆ ಪಟ್ಟದಕಲ್ಲು ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲವೂ ಕೂಡ ಇವತ್ತು ಬೇಲೂರು ಹಳೆಬೀಡು ಇರ್ಬೋದು, ಗಜಂತ ಅಲ್ಲೋರ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಕಡೆ ಬಹಮನಿ ಸುಲ್ತಾನ್ ರೇಟ್ ಇರ್ಬೋದು, ಈ ಎಲ್ಲವನ್ನ ಕಡೆ ತಿಳಿಸ್ ನೋಡೋದು. ಅಥವಾ ಆಗ್ರಾ ಇದ್ದಾಗ ಆ ಕಡೆ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು, ಕಡೆ ಜೈಪುರ ಎಲ್ಲ ನೋಡಿದಾಗ ಭಾರತ ದೇಶ ಎಲ್ಲಿಲ್ಲ ಹೇಳಿ ಅಂಥ ಒಂದು ಟೂರಿಸಮ್ಗೆ ತುಂಬ ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇರುವಂಥದ್ದು ಬೇರೆ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಕ್ಕೂ ಇಲ್ಲ, ಮತ್ತು ಇತಿಹಾಸ ಕೂಡ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿಗಿಲ್ಲ. ಅಂಥ ಒಂದು ಇತಿಹಾಸ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಪೊಟೆನ್ಷಿಯಲ್ ಇವತ್ತು ಸಹ ನಮ್ಮ ದೇಶಕ್ಕಿದೆ. ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಎಲ್ಲೋ ಒಂದು ಕಡೆ ನಾವು ಬಹಳಷ್ಟು ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ, ಮತ್ತು ಈಗ ಬಹಳಷ್ಟು ತಡ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತು ನಾವೇನಾದರೂ ಯುದ್ಧೋಪಾಯದಲ್ಲಿ ವಾರ್ ಫುಟಿಂಗ್ನಾಗ ಏನಾದರೂ ಮಾಡಿ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನು ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡಿದಿದ್ರೆ, ಇವನ್ನ ಶುಚಿತ್ವವಾಗಿ ನಾವು ಇಟ್ಕೋದಿದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಯಾವುದೂ ಕೂಡ ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲ ನೋಡಲಿಕ್ಕೆ. ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಸಿಕ್ಕದಲ್ಲ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಅದು ಹೊರಟು ಹೋಗ್ತದೆ. ಆ ಕೆಲಸ ಇವತ್ತು ದಿವಸ ಆಗಬಾರ್ದು. ಆ ದಿಶೆಯಲ್ಲಿ ನಾವೆಲ್ಲರೂ ಕೈಗೂಡಿಸ್ಬೇಕು. ಸಾರ್ವಜನಿಕರು, ಸರ್ಕಾರ ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ, ಸಂಘ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡಿ ಈ ಸ್ಮಾರಕಗಳನ್ನ ರಕ್ಷಣೆ ಮಾಡೋ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಗತವೈಭವವನ್ನು ಸಹ ನಾವು ರಕ್ಷಿಸಿ ಮುಂದಿನ ಪೀಳಿಗೆಗೆ ಕೊಡುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಮೇಲೆ ಇದೆ ಅಂತ ಮಾತನ್ನ ಸಂದರ್ಭ ಹೇಳಿ, ಅಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಬಿಜಾಪುರ ಸುಲ್ತಾನೇಟ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ಟಡೀಸ್ ಇನ್ ಬಿಜಾಪುರ ಸುಲ್ತಾನೇಟ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಇದನ್ನು ನಮ್ಮ ಅಬ್ದುಲ್ ಗನಿ ಇಬ್ರಾತ್ರವಾದ ಸಹ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ प्रोफेसर इमारत वाले साहब की किताब को पढ़ें, इसका मुताला करें। अंग्रेजी के साथ साथ कन्नड़ा में भी, अंग्रेजी के साथ साथ हिंदी में भी इसका मुताला करें तो इन्हें पता चलेगा, यानी देश में रहने बसने वालों को जो सेकुलरिज्म के नाम पर एक बदनुमा दाग है, उन्हें कम से कम इस बात का इल्म होगा कि इस देश में कमोबेश कई सौ सालों तक हुकूमत करने वाले मुस्लिम हुक्मरान ये फिरका परस्त नहीं थे, बल्कि ये सेकुलर थे। ये कदामत पसंद नहीं थे, बल्कि ये सेकुलर थे। ये सिर्फ इस्लाम और मुसलमानों की बात नहीं करते थे, बल्कि ये हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद की बात करते थे। एक अजीम पैगाम अगर हिंदुस्तान में किसी किताब के जरिए जा सकता है तो मुझे उम्मीद है कि वो प्रोफेसर इमारत वाले साहब की किताब से ये पैगाम जा सकता है। इसके लिए हम सबको मिलकर के बड़े पैमाने पे कोशिश करनी पड़ेगी, और इसके लिए हमारे दरमियान डॉक्टर एम.बी. पाटिल साहब बैठे हुए हैं। उनके लिए बहुत सारी बातें कही गई और ज़्यादा उनके लिए कुछ कहना भी ज़रूरी नहीं है, इसलिए कि वो और उनके कारनामे अज़हर मिन अश-शम्स हैं। सब कोई जानते हैं उनके अपने कारनामे क्या हैं, उनकी अपनी खिदमत क्या हैं। पीछे से हमारे कादरी एडवोकेट कह रहे थे कि बीजापुर की तारीख लिखी जाती है तो आदिल शाही 1, आदिल शाह 2 कहते हैं ना कि आदिल शाह 1 है, या आदिल शाह 2 है। डॉक्टर एम.बी. पाटिल जनाब तनवीर हाशमी साहब, इनका भी बहुत बड़ा मेरे ऊपर और ये फंक्शन को ऑर्गेनाइज करने के लिए उनकी सरपरस्ती मुझे हासिल रही, और हर बार वो मेरे लिए एक गाइड रहे, एक मेंटर रहे। हर बार उनसे मैं रुजू होता था और ये सब बातें इस कामयाबी के लिए हासिल करता था। इस किताब जैसे हमारे मेरे अजीज़ दोस्त प्रोफेसर एस.एस. दौलतकुटी साहब वो बताए कि ये किताब 2 हिस्सों में है। एक जो पहला हिस्सा है उसका मई का महीना था 1983 में एक नेशनल सेमिनार हुआ था बीजापुर में, जिसको ऑर्गेनाइज करने वाले डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन उस ज़माने के वो एक बहुत नामवर डिप्टी कमिश्नर थे श्री संजय गुप्ता साहब। वो सैनिक स्कूल के प्रिंसिपल और दूसरे अथॉरिटीज़ और आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के ऑफिसर्स, टूरिज़्म डिपार्टमेंट के ऑफिसर्स, ये सब मिलाकर एक नेशनल शानदार सेमिनार रहा, जिसमें 4 सामईन इकराम, ख़वातीनो हज़रात, आज का ये इजलास एक तारीख साज इजलास है जिसमें किताब तारीख़ बउनवान मुतालिया सल्तनत बीजापुर का इजरा अमल में आ रहा है। किताब की रस्मी इजरा का असल मकसद
किताब का तारुफ और उसकी तशहीर है। ये किताब शहर बीजापुर की अजीमुशान आदिलशाही सल्तनत की माशरती, इक़्तिसादी, सियासी, इल्मी, अदबी पहलुओं पर रोशनी डालती है। ये किताब 2 हिस्सों में मुनक़सिम है। इसका पहला हिस्सा एक तारीख साज सेमिनार जो अंजुमन डिग्री कॉलेज में 1983 में मुनाक़िद हुआ था, जो इनामदार सर की सरपरस्ती में और प्रोफेसर कड़कोल सर और जागीरदार सर की निगरानी में ये सेमिनार, तारीख साज सेमिनार हुआ था, जिसमें बहुत मशहूर और मारूफ मौरख़ीन बहैसियत मकाला निगार के इसमें शरीक हुए थे। इस किताब में उस मकालों को पढ़कर और उनकी तस्वीर को देखकर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि वो सेमिनार किस कदर मानाखेज और वो किस कदर तारीख साज सेमिनार था। डॉक्टर इमारत अली साहब ने जब ये कीमती मज़ामीन को देखा कि ये मज़ामीन ज़ाया न हो जाएं और इसकी इशाअत हो और लोगों तक इसका इल्म पहुँचे, ये बड़े बेचैन थे। मुझे हमेशा कहा करते थे कि मैं 2-3 साल से ख़ास तौर पर प्रोफेसर इनामदार साहब के पास मैं कई मरतबा गया हूँ, लेकिन वो राज़ी नहीं हो रहे हैं किताब इस मज़ामीन को शाया करने के लिए। 2-3 मरतबा मैं इनके साथ भी गया और आखिरकार आप राज़ी हुए और फिर उसके बाद ये मज़ामीन जो ख़ास तौर पर इस किताब की तहरीक को या इस किताब की इशाअत का ज़रिया बनने का ख़ास तौर पर वो मज़ामीन बने, जो बड़ी खूबसूरत मज़ामीन इस किताब में मौजूद हैं। इसका दूसरा हिस्सा, इस किताब का दूसरा हिस्सा, ये सारी किताब देखने के बाद में एक और चीज़ याद आती है कि इस किताब में बहुत सी चीज़ सेक्युलरिज्म के बारे में ही कवर किया गया है। बहुत सी चीज़ों को सेक्युलरिज्म क्या ये डेफिनेशन था अली आदिल शाह के टाइम पर। और मुझे ख़ास करके एक और चीज़ का आपको बताना है कि उस वक्त के जो सूफीज़ थे, बीजापुर के सूफीज़ थे, जो दिल्ली के सूफीज़ थे, वो जो है हिंदू और मुस्लिम के बीच एक ब्रिज बनाया हुआ था। सूफियों का आज इतना बड़ा मुकाम इसलिए है कि हिस्ट्री बीजापुर सल्तनत, ये हिस्ट्री की एक बड़ी किताब जिसको डॉक्टर अब्दुल गनी इमारत वाले और डॉक्टर मकसूद अब्दुल जागीरदार साहब ने लिखा है, जिसमें प्रोफेसर सैयद वाजिद पीरज़ादा हाशमी साहब का मजमून भी शामिल है। ये तारीख़ी किताब का रस्मी इजरा हो रहा है। डॉक्टर अब्दुल गनी इमारत वाले, डॉक्टर मकसूद अब्दुल जागीरदार साहब की किताब स्टडीज़ इन बीजापुर सल्तनत का रस्मी इजरा हो रहा है। तारीख़ी की किताब हमेशा याद रखी जाएगी इंशाअल्लाह ताला। नौजवान नस्ल भी इससे इस्तेफादा करेगी। आने वाले दिनों में जो यंग स्कॉलर्स हैं वो भी इससे इस्तेफादा करेंगे इंशाअल्लाह ताला। मैं ऑनरेबल डॉक्टर एम.पी. पाटिल साहब से गुजारिश करता हूँ, डॉक्टर एम.पी. पाटिल साहब से गुजारिश करता हूँ। ख़वातीन हज़रात, इस स्टडीज़ बीजापुर सल्तनत के ऑथर डॉक्टर अब्दुल गनी इमारत वाले सर की गुलपोशी होने जा रही है। आज इस मेरी किताब स्टडीज़ इन बीजापुर सुल्तानेट के इजरा के मौके पर मैं सारे बीजापुर के लोगों को मुबारकबाद देना चाहता हूँ, क्योंकि ये मेरी किताब नहीं, बीजापुर की किताब है, बीजापुर की तारीख़ की किताब है, बीजापुर की कल्चर और तमद्दुन की किताब है। इसमें बहुत से अच्छे नुकात पर काम किया गया है। सूफीज़म पे इस पे मालूमात हैं, एडमिनिस्ट्रेशन है, सोशल लाइफ है, इकोनॉमिक कंडीशंस हैं,
पोर्ट टाउन्स के बारे में भी मैं काफ़ी कुछ मालूमात या आर्टिकल्स इस पे लिखा हूँ। मैं समझता हूँ ये किताब दुनिया भर में फैलेगी, इसका नॉलेज दुनिया भर में फैलेगा और जो एक शानदार माजी था बीजापुर का, इस किताब के ज़रिए उजागर होगा। शुक्रिया सर। अभी हाल ही में ऐसे आज के हालात में जो है जी, तारीख को उलट पलट कर पेश किया जा रहा है। जी, ये हमारी ज़िम्मेदारी बनती है, जो सही तहकीक करते हैं या महक़्क़िक़ हैं, उनकी ज़िम्मेदारी बनती है कि खूब रिसर्च करें, इल्म को अपनाएं, सीखें, सिखाएं। इसके यही करने से ही हम ऐसे फोर्सेस जो हैं उसका जवाब दे सकते हैं। पढ़ना लिखना बहुत ज़रूरी है। जब तक हम पढ़ना लिखना अपनाएंगे या उसी के साथ हम चलेंगे, तभी कुछ ये बातें हमारे कौम के लिए, पूरे हमारे देश के लिए, मुल्क के लिए कारगर साबित होंगी। सर, ये किताब को लिखने में आपको कितना वक्त? ये 5 साल की मेरी मेहनत है। इसके अलावा मेरे और दूसरे किताबें हैं जो नोबल्स एंड सेवंस ऑफ बीजापुर, अफजल ख़ान द ग्रेट वज़ीर ऑफ बीजापुर कोर्ट, ये पानी महल के ऊपर मैं लिखा हूँ, नलदुर्ग इट्स हिस्ट्री एंड मोनूमेंट्स पे मैं लिखा हूँ। ये सब किताबों को एक तरफ रख कर इस किताब के ऊपर मैं मेहनत किया। इसकी वजह ये है कि ये एक सेमिनार हुआ था 1983 में, 38 इयर्स पहले ये हुआ था। मुझे डर था कहीं ये बेहतरीन जो आर्टिकल्स हैं या नॉलेज है, बीजापुर की नॉलेज कहीं ज़ाया ना हो। मेरे सारे कामों को पीछे रखकर ताक में रखकर मैं इस पे काम किया और मुझे बहुत ही खुशी है कि अल्लाह ताला मेरे हाथों से ये काम करवाया। कितने नंबर किताब है आपकी? ये 5वें नंबर किताब है मेरी, और 5 इंशाल्लाह ताला दिसंबर तक को मैं कंप्लीट करूँगा और शाया भी करूँगा। इस किताब को लिखने में किन लोगों ने आपका ताउन किया? क्या दुश्वारियाँ पेश आई? दुश्वारियाँ तो कुछ नहीं, मेहनत दरकार है। इसे घर में बैठ के काम करते हैं, मेहनत अपना सुकून ये सब छोड़कर, ये सुकून छोड़कर मेहनत करना लाजमी है। इल्मी काम करने के लिए कोई मुशक्क़त या कोई किसी का असिस्टेंस की क्या ज़रूरत नहीं है। अपनी मेहनत रहती है, अपने जो इंटेलिजेंस है उसका इस्तेमाल करके हम ये काम करते हैं। सैयद वाजिद पीरजादे साहब भी, उनका बहुत बड़ा ताउन रहा मुझे। मौलाना सैयद तनवीर हाशमी साहब का भी मुझे ताउन रहा। हमारे जो कैंडिडेट हैं, MLA कैंडिडेट हमीद मुशरफ साहब का भी मुझे ताउन रहा। टपाल साहब का ताउन रहा। पाटिल गनियार साहब का ताउन रहा। SS जागीरदार साहब हैं, उनका ताउन रहा। सबका ये ताउन रहने की वजह से ये कामयाब इवेंट रहा और इसका बहुत शानदार बड़ा लॉन्च इस किताब का हुआ। आपने 5 किताबें अब तक लिखी हुई हैं जी। क्या किसी एक किताब पर भी आपकी तनकीद हुई है या आप पर किसी ने उंगली उठाई है, बवाल हुआ हो? नहीं, कुछ नहीं हुआ। कंट्रोवर्सीज तो कुछ नहीं है। जो अच्छी बातें हैं हिस्ट्री से, जो हमें सीखना चाहिए, वो बातों पे मैं ध्यान दिया हूँ। हाँ, उसमें मैं ध्यान दिया हूँ। ये 5 जो किताबें हैं, हिस्ट्री ऑफ बीजापुर सूबा है, नोबल, और दूसरी जो मिडिवल बीजापुर है, और हज़रत अब्दुल रज़ाक कादिर रहमतुल्लाह अलैह पे और एक मैं किताब लिखा हूँ उनके लाइफ्स एंड टाइम्स के बारे में है, और बीजापुर वाटर वर्क्स स्पेशल रेफरेंस टू ताज बॉडी, ये 4 किताबें हैं। और ये 5वीं जो आज की जो उसका जो लॉन्च हुआ, एक हिस्टोरिक तारीख़ की किताब का रस्म इजरा हुआ है, स्टडीज़ इन बीजापुर सल्तनत। इस किताब पर काफ़ी कुछ कहा गया भी है, मैं ज़्यादा इस पर बोलने की कोशिश नहीं करूँगा। बस इतना समझ लें कि बहुत बड़ी मेहनत का नतीजा है इमारत वाले का। जैसा कि आपने सवाल किया था कि इनकी पहली किताबों पर कोई तनकीद हुई है या नहीं, तो तनकीद होने की कोई गुंजाइश मैं समझता हूँ नहीं रहती जब आप एविडेंस के साथ अपने आर्गूमेंट रखते हैं। अपना जो भी आर्गूमेंट है, अगर आप एविडेंस के साथ सामने रखेंगे तो तनकीद करने वाले भी खामोश हो जाते हैं। तो इमारत वाले साहब की यही खूबी है कि अपना जो आर्गूमेंट रहता है वो एविडेंस के साथ रखते हैं। जैसा कि मैंने अपने ख़िताब में कहा कि ईटन का जो आर्गूमेंट है उसको आपने एविडेंस के साथ सामने रखा, मोहम्मदनामा एविडेंस है। तो ईटन जैसा ऑथर इनका जवाब नहीं दे सका, तो दूसरे लोग, यहाँ के लोग आजकल जो बड़े बड़े अपने आप को हिस्टोरियंस कहने लगते हैं, क्या हिस्ट्री का यश भी मालूम नहीं है उनको? हाँ, हिस्ट्री बड़े अपने आप को हिस्टोरियंस कहते हैं। पहले वो आकर डॉक्टर इमारत वाले सर के पास हिस्ट्री की ट्रेनिंग लें, उसके बाद जाकर बड़े बड़े दावे पेश करें। अभी आपने कहा कि बीजापुर सल्तनत, इस किताब पर भी कुछ हुआ, क्या हुआ? इस किताब पर अभी तो रस्म इजरा हुआ है इसका। इस किताब पर मैंने क्या कहा कि
1972 में ईटन ने कहा था कि मोहम्मद आदिल शाह को हज़रत हाशिम पीर ने अपनी हयाती बख्शी। ओके, उसने ये नहीं कहा कि हयाती बख्शी, उसने कहा कि द सेंट गेव हिज 10 years ऑफ लाइफ। सरसरी तौर पर उसने बयान किया है। और आगे लिखता है कि सुल्तान मोहम्मद आदिल शाह 1646 से 1656 तक शदीद बीमार रहा। उसने रिकवर ही नहीं किया 1646 से रिकवर ही नहीं किया। 1646 हज़रत का विसाल है, हज़रत हाशिम पीर का। ओके, तो जब रिकवर ही नहीं करता तो हयाती देने का मतलब क्या होगा? सुल्तान मोहम्मद अली शाह बीमार हुआ था, शदीद बीमार हुआ था। हज़रत हाशिम पीर के दरबार में पहुंचा तो हज़रत ने उसके लिए दुआ की, अपनी 10 साल की हयाती उसे दे दी। मगर ईटन ये मानने को तैयार नहीं है। वो कहता है कि बीमार हुए, शदीद बीमार हुआ, पैरालिसिस हुआ। मगर इमारत वाले साहब ने अपने रिसर्च में ये साबित किया कि रिचर्ड ईटन का ये दावा गलत है। 1646 से 1656 तक सुल्तान सेहतमंद था, हेल्दी था। उसने ट्रैवल किया है, उसने निकाह किया है, वो फिर से बाप बना है 1649 में। हज़रत ख्वाजा बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह के संदल में शरीक रहा है। सर, ऐसे जो बड़े बड़े मौरिख जो हैं, जैसे आपने ईटन का नाम लिया जी, तो ऐसे बड़े बड़े जो मौरिख हैं जो हिस्ट्री को तोड़ मड़ोड़ कर पेश करना चाहते हैं। नहीं, मैं डायरेक्टली ईटन को जवाबदार नहीं मानूंगा, क्योंकि वो 74 की बात है। हो सकता है रिसर्च की कमी है, मोहम्मद नामा को उसने नहीं देखा होगा, या फिर उसके दिमाग में कुछ और चलता होगा। और एक बात बता दूं, मैं आज जो हिस्ट्री को तोड़ मड़ोड़ कर पेश किया जा रहा है, उसका जल्द से जल्द जवाब डॉक्टर इमारत वाले की आने वाली रिसर्च किताबों में आने वाला है। टीपू सुल्तान पर वो एक किताब लिख रहे हैं। टीपू सुल्तान पर जो इल्ज़ामात हैं वो सारे के सारे रद्द हो जाएंगे, ढेर हो जाएंगे, अगर उनकी वो किताब मंजर आम पर आ गई तो। क्योंकि प्राइमरी सोर्सेस को कोट करके लिख रहे हैं वो। पर्शियन के जो प्राइमरी सोर्सेस हैं उसको कोट करके लिख रहे हैं। जब प्राइमरी सोर्सेस और एविडेंस के साथ कोई कोट करता है तो आपको और मुझको मानना ही पड़ेगा, उसमें आर्गुमेंट नहीं कर सकते। जैसे मैंने अपना सोर्स कोट किया तो आप सब लोग को मानना पड़ेगा उसको। मोहम्मद नामा में है, मैंने कहा आपको, मोहम्मद नामा में मोहम्मद आदिल शाह के सारे जो कारनामे हैं डे टू डे लाइफ के 1646 से 1656 तक दर्ज हैं। मैंने कहा एविडेंस के साथ मैं जब बात करता हूं तो आपको मानना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। बीजापुर सल्तनत, स्टडीज़ इन बीजापुर सल्तनत। मेरा नाम जज belongs to the pedigree of Afzal Khan, and this book is the first book in our life, as we belongs to the pedigree of Afzal Khan, and we have also created a trust in the name of Afzal Khan. And apart from this book, other books are there. Particularly one book is relating to Afzal Khan, and particularly this book is concerned. This is being co-authoring. I am being the co-author of this book, and I have got the experience and study because I have traveled 25,000 kilometers for the purpose of research work along with Dr. Imarat Wale. In future also I will continue the same, and I hope that this book will bring name and fame of Bijapur history. And also before concluding, I also inform that in this book some articles are very important and very useful articles, wherein the history of new dimension of the history of Bijapur can also be seen. And we hope that the people of Bijapur and other parts of the country may read this book with all generosity and may purchase for the purpose of enhancing their knowledge. Thank you. तो बीजापुर की तारीख में एक और तारीख जुड़ गई है। तो आज शहर बीजापुर के JB गार्डन फंक्शन हॉल में एक बुक का इजरा हुआ, जिसे बीजापुर सल्तनत के नाम से बुक का इजरा हुआ, जिसके मुसन्निफ़ हैं अब्दुल गनी इमारत वाले और जागीरदार साहब को मुसन्निफ़ हैं। तो आज जो है इस किताब इजरा जो
कर्नाटक गवर्नमेंट के माजी होम मिनिस्टर एम.बी. पाटिल और सैयद तनवीर पीरा हाशमी साहब किबला के हाथों इनका इजरा हुआ। और एक किताब के ताल्लुक़ से मौरिख़ीन तमाम जो है मुसन्निफ़ ने जो है अपनी राय पेश की और उसके अलावा बहुत से जो सियासी समाजी रहनुमाओं ने इसमें हिस्सा लिया। कैमरामैन रऊफ़ के साथ मैं खुर्शीद आलम, बीजापुर। और खबरों के लिए देखते रहिए बी न्यूज़ नेशन।